انشاءاللہ بہت ہی سرسری طور پر اشارات و کنایات کے ذریعے انشاءاللہ بات پہنچائی جائے گی، اور عباس علمدار کے کئی فضائل کے چھروکے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے، سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے عادت کے مطابق آپ حضرات نے غور کیا ہوگا، مجلس ہے، ہر مجلس میں تھوڑا سا ترجمے کے بعد قرآن مجید کے کسی ایک گوشے پر کی کیا گہرائی ہے، کیا گہرائی ہے، کیا نقطہ ہے، کیا فہامت ہے، کیا سخاوت ہے، کیا فراست ہے، کتنا زیادہ گہرائی و گہرائی ہے قرآن میں، ہم کیسے اپنی ہر بات کو قرآن کے ذریعے سے ثابت کریں۔ الحمدللہ ابھی تو 2-4 منٹ آپ کا لیا جا رہا ہے روز۔ آج اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے ابتدائی کلام میں کہ جو ماشاءاللہ مسلسل آپ مولا حسین کا نام لے رہے ہیں ہر جگہ پر، حالانکہ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی آوازیں آ رہی ہیں، کئی بچے یا حسین حسین کر رہے ہیں، کئی عورتیں عباس علمدار کا نام لے رہے ہیں، کہیں پر مسائل پڑھے جا رہے ہیں، کہیں پر نوحے پڑھے جا رہے ہیں، کہیں پر مرادوں کو لینے کے لیے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آج مراد لے کے اٹھنا ہے، آج باب الحوائج کے دربار میں کچھ لے کر کے جانا ہے، آج باب الحوائج تک اپنی آواز کو پہنچانا ہے، آج باب الحوائج کی بارگاہ میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی سلسلے میں درخواست دینا کہ مولا بس بہت ہو گیا ہے، آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے دربار میں ہم سر جھکا کے آئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور بلکہ پھر ایک جملہ اگر کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے ایک جملہ حکیم نے عرض کیا تھا، اور ایک نوجوان کے ذریعے سے کہ ایک نوجوان کہ کس طرح سے ہمارا نوجوان ہمتی ہوتا ہے، کتنا طاقت والا ہوتا ہے، کتنا شجاعت والا، شجاعت کہاں سے ملی ہے؟ عباس علمدار سے ملی ہے۔ یہ شجاعت کہاں سے ملی ہے؟ کربلا والوں سے ملی ہے کہ ہمارا نوجوان ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، ہمارا نوجوان شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، اپنی بات کو پہنچا دیتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کے اذان عالیہ میں یہ بات ہوگی کہ جب منصور نے یہ سوال کیا کہ تم بہت علی علی کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے علی کے بعد بھی جبرائیل نازل ہوئے؟ تو کتنی شان سے اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ رسول پر کئی مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے؟ اس نے کیا کہا کہ 24,000 مرتبہ۔ نوجوان نے کہا کہ اگر وہاں 24 تو میرے مولا پر 48,000 مرتبہ۔ یہ جملہ میں نے کیوں سنا؟ الحمدللہ تحمیل بات آگے پہنچ جائے کہ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا جواب دیا کہ رسالت باپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اندر جیسے مطلب غلام عباس صاحب ماشاءاللہ وہاں پر بیٹھے ہوئے دروازے میں جو بیٹھا ہے، جو بھی ملنے آئے گا تو ان سے ایک دفعہ ملے گا، لیکن جو دروازے پر بیٹھا ہے ایک دفعہ جاتے ہوئے ملے گا، ایک دفعہ آتے ہوئے ایسے ہی نہیں سنایا ہے آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے، آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ وہ ہے کہ جس کو باپ رسول کہا جائے، نہیں، بیٹا بھی ایسا ہے جو باپ الحوائج بھی ہے، باپ المراد بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باپ الحسین بھی ہے۔ اب جملہ کہنے دیجیے انشاءاللہ لے کر کے جائیے گا کہ 7 کروڑ کا مجمع اگر کربلا جاتا ہے تو میں معافی چاہتے ہوئے مولا حسین سے کہوں گا مولا آپ کے دربار میں 7 کروڑ تو مولا عباس کے دربار میں 14 کروڑ افراد جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دروازہ عباس ہے، ہر لائق پہلے آپ سے ملتا ہے، پھر حسین تک پہنچتا ہے، پھر واپسی میں آپ تک آتا ہے۔ سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ یعنی کوئی کربلا پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے عباس کے دربار تک نہ پہنچ جائے، ان کے روضے تک نہ پہنچ جائے۔ وہاں پر حاضر نے اس لیے کہ باب الحسین، حسین پورے شہر ہے زیارت کے، تو اس زیارت کا دروازہ عباس ہے، ملاقات کا دروازہ عباس ہے، حاجتوں کا دروازہ عباس ہے، مرادوں کا دروازہ عباس ہے، خواہشوں کا دروازہ عباس ہے۔ در قرار دیا گیا ہے کہ جو بھی تم کو مولا حسین کے دربار میں کہنا
पहले अपनी दरखास्त को यहाँ पर रखो, अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 तारीख है और पूरे हिंदुस्तान में बिलखुसूस चूँकि यहाँ पर रुकावट है और बहुत सी जगहों पर मसलन ईरान इराक रुकावट नहीं, लेकिन बहुत से लोग खुद ही एहतियात कर रहे हैं, बच रहे हैं, लिहाजा मजमा कम नजर आ रहा है। ईरान में मजमा कम नजर आ रहा है कि बहुत से लोग खुद बच रहे हैं, जो ऐसे हालात वाक़यात से पूरी दुनिया गुजरी है 4-5 महीने से लोग डरे हुए घबराए हुए। यहाँ पर तो सही में पाबंदी, सही में यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन इतने रोकने के बावजूद, इतनी मानवीयत के बावजूद, इतने हिजाब और पर्दे के बावजूद जो कितना ज़्यादा पूरी हुकूमत की नज़र है और बाकायदा कितना कष्ट बढ़ा दिया गया है रातों दिन, लेकिन ये खबर आ रही है कि जो आवाज़ फिजा में उठती थी वो आवाज़ें उठ रही है। बल्कि आज अगर एक जुमला मैं हुकूमत को कह दूँ तो गलत नहीं है, मैं कहूँगा कि यकीनन ज़ाहिरी तौर पर तुम इंसानों पर पहरा बिठा सकते हो, जो जिन्नात मातम कर रहे हैं कौन रोकने वाला है, जो रूहें मातम कर रहे हैं कौन रोकने वाला है, जो मलाइका मातम कर रहे हैं कौन रोकने वाला है, जो मासूमीन मातम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, रसूल अरबी मातम कर रहे हैं। सलवात दीजिए आप हज़रात। तुम्हारी तमन्नाई वहां तक नहीं है कि अगर गौर करें आप, वो आपके इमाम बारगाह जो बड़े कदीमी से बड़े पुराने हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पर जो शराइत लगाई वो उस शर्त के साथ कोई मातम न करे, मतलब 5 आदमी या मुख्तसर से जा करके इमाम बारगाह खोलें और न वो मातम करे। यकीन यानी मैं दिन भर से अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप दिन भर कुछ ऐसा न करें और रात में इमाम बारगाह के दरवाजे पर आप आवाज आएगी या हुसैन या हुसैन या अब्बास, ये कौन है? वहाँ के जिन्नात है, अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया है, कुरान में इनका जिक्र है, हदीस में इनका जिक्र है और हर अच्छी जगह पर जिन्नातों का कब्जा। लिहाजा ये इंशाअल्लाह हो सकता है कि 10 मुहर्रम के बाद ये खबरें शायद हो आएंगी, बहुत से इमाम बारगाहों से आवाज़ आ रही है। इसके ऊपर काफ़ी उलमा किराम ने भी अपनी बड़ी बड़ी किताबों में और मीर अनीस मरहूम ने तो बाकायदा आखिर में इज़हार किया इंतकाल से पहले कि रात में जो मैं गुम हो जाता था कभी कभी जिन्नातों को मर्सियाँ सुनाने जाता था। सलवात भेजा बताते थे कि 2 बजे रात में कहाँ चले जा रहे हैं, 1 बजे रात में पूरा मर्सिया है बगल में और बाकायदा सुबह सुबह नमाज के वक्त आ रहे हैं, तो बहुत देर में इकरार किया। ऐसा नहीं है कि इमाम बारगाह में सिर्फ आप मातम कर रहे हैं, बहुत से जिन्नात मातम कर रहे हैं, बहुत से अरवाहें मातम कर रहे हैं, बहुत से लोग माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने मरने के बाद भी इजाजत दे रखी है, उनकी आवाज़ें भी सुनी जा रही है। हमारे पास अभी रात के टेलीफोन आया कि ऑस्ट्रेलिया में बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा, हो सकता है कुछ कोताही की, कहा कि अब्बा जान इशारा कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा। सलवात भेजा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ऐसी बातें ये अंदर की बातें हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं बताया जा सकता कि हमारा नौजवान हो सकता है थोड़ा घबरा जाए कि जितने आप बैठे हुए, ये पुरानी चीज़ कि जितने आप बैठे हुए हैं यहाँ पर इसके 2 बराबर जिन्नात बैठे हुए। कुरान की कई आयतों में ऐसा है कि जितना इंसानों को अल्लाह ताला ने खल्क किया है उसके 2 बराबर जिन्नातों को पैदा किया गया। तो अच्छे जिन्नात हैं वो मातम कर रहे हैं, अरवाहें मातम कर रही हैं, मलाइका मातम कर रहे हैं और हमारे बहुत से ये बच्चे मातम कर रहे हैं, इनकी भी आवाज़ आ रही है। और यकीनन ये मातम, ये अदादारी, ये ऐसी चीज़ है कि इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। आपका ध्यान फिर पहुँच गया होगा तारीख के दखन, हैदराबाद की तारीख कि जब 4 रात नमदार होने वाली थी तो औरंगजेब ने ऐलान कर दिया था कि खबरदार आज कोई भी अलम नहीं उठाएगा, आज कोई भी इमाम बारगाह में नहीं आएगा। बहरहाल ये ऐलान सुबह से शुरू हो गया, तारीख के दखन सुबह से शुरू हो गया, चारों तरफ ऐलान करा दिया गया। लेकिन इनका जो वजीर था नेमत खान अली, अल्लाह ताला इनके दर्जात में इजाफा फरमाए, मौला के चाहने वाले थे और बड़े ज़ीरक थे, बड़े कईस, बड़े फरीस थे। इनकी कब्र मुबारक पर लोग फातिहा पढ़ने के लिए जाते दायरे की मुकिन हैदराबाद तक, इसलिए बहुत बड़ा काम करवाया है शियों का। और ऐसे मौके पर जबकि मुश्किल मरहला आया है तो कैसे अपना फायदा दिया है उन्होंने, कैसे फायदा पहुँचाया। जैसे बादशाह ने कहा उसके तो हाँ में हाँ मिला दी, हाँ सही है आपका ऐलान होना चाहिए, यहाँ ऐलान करा दो, वहाँ ऐलान करा दो। लेकिन जब दोपहर हुई और ये हुआ कि अब दोपहर के बाद अलम सजना चाहिए और इमाम बारगाहों में जाना चाहिए,
के दिल में आया कि सुबह से तो ऐलान हो रहा है, आज आलम कैसे उठेगा, इसलिए बादशाह का ऐलान है, फौज लगी हुई है। नेमत खाने अली के पास आहिस्ता से कुछ लोग सीधे तौर पर आए, बुजुर्ग कहा कि आप मशवरा दीजिए, बताइए कि यकीनन ऐलान तो बड़ा सख्त है, बड़ा खबीस है ये बादशाह, बहुत पलीद है, तो अच्छा खासा हंगामा कर देगा, बदल भारत कर देगा, बताओ क्या करें। वजीर थे, बहुत चालाक थे, मौला के चाहने वाले थे, कहा देखो इसका ऐलान तो बड़ा सख्त है, चूंकि अंदर मीटिंग हुई, मैं भी बैठा था, इसने इरादा कर लिया कि हजारों लोगों को कत्ल कर देगा, लिहाजा तुम लोग तो अलम न उठाओ। कहा फिर क्या करें, चादरात हमेशा अलम उठाते हैं और अपने अपने बारगाहों में, और हम हुसैनियों में जाते हैं। कहा ऐसा है कि इस साल हर घर में जितने छोटे बच्चे हैं, 8 और 10 साल के, 15 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, उनको काला लिबास पहना दो और छोटा छोटा आलम दे करके बारगाहों में भेजो, महल की तरफ भेजो, सब कहते रहे या अब्बास या अब्बास या हुसैन या अब्बास। हम लोग क्या सुन रहे हैं आप, जैसे ही शाम हुई और छोटे छोटे बच्चे अंजुमन बना करके 8-10 बच्चे, 20 बच्चे थोड़ी 2-2 मिनट में जाहिर हो रहे हैं, सब महल के पास आकर के हर तरफ से वाह हुसैना वाह अब्बासा या अब्बास। जब मातम बहुत ज्यादा होने लगा तो एक मर्दों महल पर ऊपर छत पर चढ़ करके देख के घबरा के नेमत खाने अली से कहता है कि मैंने मना किया था, ये कैसी आवाज आ रही है। क्या हुजूर ऐसा कि मातम में मजलिस करना फितरत में दाखिल है। बड़े लोग डर करके बैठ गए, जो बच्चे चूंकि फितरत में मातम है, ये अपनी फितरत को दोहरा रहे हैं, फितरत पर कब्जा नहीं किया जा सकता। एक बच्चा छू के कहता अच्छा बात कर दो, सबसे कहो अलम उठाए, सबसे कहो तालियां, सलवात भेजा बता अंदर के लिए फार्मूला क्यों नहीं आ पाया जा रहा, सलवात भेजा बता। हमारे पास तारीख में सब कुछ मौजूद और किया जाए कि ये मातम करना फितरत पर। आप देखें बहुत से वैसे हो सकता है मोबाइल पर आता, छोटा बच्चा है 3 महीने का है, लेकिन घर में नवा हो रहा है तो उसका भी हाथ चल रहा है, 6 महीने का बच्चा है उसका भी हाथ चल रहा है। क्यों, क्या सिखाया जा रहा है, फितरत में दाखिल। हमें हुसैन को अल्लाह ताला ने फितरत में दाखिल कर दिया, करबला वालों के गम को अल्लाह ताला ने फितरत में दाखिल कर दिया है। और यही वजह है कि आपको आज मैं मिंबर से इस बात की तरफ इशारा कर दूं कि हर घर में कितना इंतकाल होता है, कितने लोगों को दादा का इंतकाल हो गया, नाना का हो गया, बाप का हो गया, भाई का हो गया, और यकीनन गम मनाया जाता है, जनाजा रखा है, पिटाहट मची हुई है, जनाजा उठाया गया, बहुत ज्यादा क्रिया हो रहा है, घर में वापस आए, अब जो क्रिया अभी दिन में हो रहा था थोड़ा कम हो गया, दूसरे दिन और ज्यादा क्रिया कम हो गया। क्यों, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि अगर अल्लाह ताला उसे गम में मुब्तला कर दे तो दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। सारी दुनिया का दस्तूर ये है कि गम 2-4-10 दिन के बाद या 40वें तक मनाने के बाद भूल जाओ, लेकिन मौला हुसैन का ऐसा गम है कि पहली मुहर्रम को कम है तो दूसरी को और ज्यादा है, तीसरी को और ज्यादा है, चौथी को और, क्या सुन रहे हैं आप, 5वीं को और ज्यादा है। और ये जर्मन के बहुत बड़े राइटर ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब हिंदुस्तान पहली मर्तबा आया और कैमरा ला करके वो कुछ फोटो लेने जा रहा था, उसको बताया गया कि मुहर्रम का जमाना है, अगर खास फोटो चाहिए तो तुम लखनऊ चले जाओ। बहरहाल ये सोच करके गया, पूरी चीजों को मालूम करके कहा पहली मुहर्रम है, लिहाजा थोड़ा बहुत जुलूस मिलेगा, और चूंकि पहले दिन हर जगह पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कम मनाया जाता है, लिहाजा दूसरे दिन कम हो जाएगा, कुछ कम फोटो लेंगे। पहले दिन गया तो देखा जगह जगह अलम है, जुलूस है, उसने फोटो निकाला। दूसरी मुहर्रम में पहुंचे, देखा कि आप तो और ज्यादा शबाब पर है, आप तो और ज्यादा फोटो ले रहा है। अब हमारी तरफ देखिए, 3 मुहर्रम को और शबाब पर, 4 मुहर्रम को और शबाब पर, जब 10 मुहर्रम हो गए, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था, तो एक बुजुर्ग को बुला के कहता है कि हादसा कब हुआ, तो बुजुर्ग ने बताया तकरीबन 1350 साल हो गया। कहा 1350 साल के बाद जब तुम अपने मोहसिन को इतना याद रख रहे हो तो याद रखो मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूं, बाद में तारीख में लिखूंगा, यही कौम जिंदा रहने वाली है, सारी कौम मुर्दा हो चुकी है जो अपने मोहसिन को नहीं याद रखती, जो क्या सुन रहे हैं, जो अपने मोहसिन को नहीं याद रखती। एक सलवात भेजे आप बता, चाहे कितनी बड़ा काम क्यों ना हो, फितरत में दाखिल, अल्लाह ताला की रहमतों बरकत में दाखिल नहीं को भुला दे, वरना ये निज़ाम कायनात चलने वाला नहीं था। लेकिन मौला हुसैन का गम ये उधर से इशारा है कि जैसे जैसे तारीख करीब आती जाएगी और ज्यादा कोहराम मचता चला जाएगा। तो आप इतना ज्यादा हुसैन हुसैन कर रहे हैं, इतना ज्यादा अब्बास नमदार का नाम ले रहे हैं, कभी आपने गौर फरमाया कि बार बार मौला हुसैन को याद कर रहे हैं, बार बार मौला अब्बास को याद
اس پر جزا کیا ملنے والی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں کہوں گا قرآن مجید جا کر کے دیکھیے سورہ یوسف، سورہ یوسف میں آپ کو جواب مل جائے گا، جیسا کہ حقیقت نے وعدہ کیا ہے ہر چیز کا جواب قرآن میں ہے، صرف ترجمہ کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ جناب یوسف کے سلسلے میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں پورا واقعہ اس لیے موجود ہے کہ الحمدللہ سیریل بار بار دکھایا جا رہا ہے، جناب یوسف کے کردار کو بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ آخر میں جناب یوسف کے تہمت پر، عصمت پر، آپ کے کردار پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ معصوم ہے، نبی ہے، لیکن جیسے ہی رات کے وقت زلیخا کی طرف سے یہ تہمت لگائی جاتی ہے، ایک گواہی دینے والے بچے نے گواہی دے دی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں جا کر کے دیکھیے گا اور پھر ملائیے گا کہ آپ دنوں رات یا عباس یا حسین کر رہے ہیں، اس کی جزا کیا ملنے والی ہے؟ 2 مہینہ 8 دن تک عباس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی جزا کیا ملنے والی ہے؟ اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یا علی یا حسین یا علی یا حسین کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں، اس پر کیا ثواب ملنے والا ہے؟ اس پہ یقیناً کوئی آیت اور حدیث تو ایک دم کھل کر کے نہیں ہے کہ اتنے لاکھ مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا، سوچ تو سکتے ہیں، قرآن مجید سے ملا کر کے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر جزا کیا ملنے والی ہے، اس پر ثواب کیا ملنے والا ہے۔ بہرحال جناب یوسف ایک دم پھنس چکے ہیں، آپ کے پاس موقع پر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے ثابت کرے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بچایا تھا، لہٰذا اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ یوسف کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی جو بچی رو رہی تھی اس کی طرف اشارہ کرو، یقیناً وہ تمہارے لیے گواہی دے دے گی۔ بہرحال ذہن میں فوراً آ گیا، اس لیے کہ جاتے ہوئے بچی رو رہی تھی تو آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا، چپ ہو گئی تھی، پھر وہاں سے جب بھاگے ہیں تب بھی آواز آ رہی تھی۔ بہرحال جیسے ہی ذہن میں آیا کہا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے، میری عصمت پر، میری نبوت پر گواہ موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا اتنی رات میں کون سے گواہ ہے تمہارے پاس؟ یہ سارے لوگ تو آواز چالو کر زلیخا ہے، زلیخا کے قریب ہے، وہ چلا رہی ہے کہ نہیں آپ نے ایسا کیا اور ماذا اللہ یہ کیا وہ کیا، کہا نہیں میرے پاس گواہ ہے۔ زلیخا کے خالہ دار بھائی کو حاضر کیا جائے، ان بچی کو حاضر کیا جائے، بہت چھوٹی بچی ہے، لیکن آتے ہی اس نے ایسی دلیل دی اور بادشاہ سے کہا کہ ان کے بارے میں، یوسف کے بارے میں یہ غور کرو کہ ان کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے کہ یہ بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی، اور اگر دامن آگے سے چاک ہے تو یوسف کی غلطی ہے کہ زلیخا کے مقابل میں کھڑے رہے۔ اب اس نے جو دیکھا تو دامن پیچھے سے چاک تھا، فوراً کہتا ہے یقیناً یہ عورتوں کا مکر ہے، عورتوں کا مکر تو کوئی چھیڑ نہیں سکتے۔ سلمان بیچ کیا مطلب یہ عورتوں کا ہیلا بہت بڑا ہیلا۔ اب ہم یہاں پر کہیں کتنی آیت ہے، اس بچے نے کتنی آیتوں کے ذریعے سے گواہی دی؟ 3 آیتوں کے ذریعے سے، 3 آیتیں، اور تقریباً سب ملا کر کے زیادہ سے زیادہ 3.5 یا 4 سیکنڈ۔ اس کو جزا کیا ملی، اس کو ثواب کیا ملا جناب یوسف پر؟ بہرحال ساری باتیں طے ہو گئی کہ نہیں یہ نبی ہے، یہ معصوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے، لہذا جب آپ کو وزارت عظمیٰ مل گیا اور آپ بہت زبردست پاور میں آ گئے اور حکومت کا آپ نے سارا نظام سنبھال لیا، ایک مرتبہ تیار ہو کر کے جا رہے تھے، جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہونے لگے آپ کی نگاہ سامنے ایک ایسے گھر سے ٹکرائی کہ دیکھا کھڑکی سے کوئی بچہ چھانک رہا جو ایک دم انفال شباب پر ہے اور ابھی نئے نئے نوجوان ہے اور بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ جناب یوسف کے دیکھنے سوچ رہے میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے، اس کو میں نے دیکھا ضرور ہے۔ پہلے لگنے میں جبرائیل آ گئے، کہا یوسف تم بھول رہے ہو، اسی بچے نے گواہی دی تھی تمہاری عصمت کی۔ جناب یوسف اتنا زیادہ خوش ہو گئے کہ فوراً آرڈر دیا کہ اس کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے، میرے خدمت میں حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی نہلا دھلا کر کے کپڑا پہنا کر کے اس کو لایا گیا، آپ نے اس کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے جو نبوت اور عصمت کی گواہی 3 سیکنڈ میں دے، جناب یوسف اپنے قدرت کے مطابق وزیر اعظم بنا لے، اور جو مسلسل یا علی کہہ رہا ہو یا حسین کہہ رہا ہو یا عباس کہہ رہا ہو، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کتنا زیادہ ثواب دینے والا ہے، جو سب پر قدرت رکھتے۔ سلوات بھیجیے اللہ اکبر، کہ مسلسل ہم یاد کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں کتنی جگہ ملے گی، کوئی آیت ایسی نہیں ہے
पूरी जिंदगी उठते बैठते या हुसैन कह रहा हो या अली कह रहा हो, बाबुल मुराद को याद कर रहा हो, बाबुल हवाइज को याद कर रहा हो। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा अल्लाह ताला ने ये ज़ख़ीरा दिया है। और ये शजरे तैयबा के कितने बरकत हैं कि आप देखिए, इंशाअल्लाह ज़ियारत करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो औलाद पूरे ईरान में बिखरी हुई है और जगह जगह फायदा लोग उठा रहे हैं। अब्बास अलमदार, कहीं अब्बास अलमदार के पोते हैं, कहीं अब्बास अलमदार के खानदान से, और बाकायदा वहाँ मज़ारात में लिखा हुआ क्या बरकत है, कितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने बरकत दिया है। इसलिए कि ये ऐसा शजरा है कि बाकायदा कुरान ने कहा कि दिनों रात इसमें फल आते रहते हैं, इसकी बरकत जाहिर होती है। तूती वकुल हकुल्लाहीन बेदने रब्बिहा, हर वक्त में इसके बरकत को देखोगे। और यकीनन हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब्बास अलमदार के दरगाह से बारकात से क्या बरकत जाहिर हो रही है। मोटी मोटी किताबें लिखी जा रही हैं, कितनी करामत जाहिर हो रही है, कितनी बरकत जाहिर हो रही है। सिर्फ अब्बास अलमदार से नहीं बल्कि आपकी औलाद से भी वही बरकत जाहिर हो रही है जो अब्बास से हो रही है, आपके भाइयों से वही बरकत जाहिर हो रही है जो अब्बास से हो रही है, आपके रौदे से वही बरकत जाहिर हो रही है जो अलमदार करबला से हो रही है। अल्लाह ताला ने कितना बरकती तोहफा दिया है। ये कैसा हदिया है, ये किस तरह से तोहफा है कि जिस तरफ से भी आप देखें अब्बास अलमदार को फदाइल ने घेर रखा है। यानी चाहे आप कहीं से भी मुलादा फरमा लें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब्बास को देखे तभी फजीलत नजर आ रही है, नहीं, नाना को देखे कितने कमालात है, मुस्तकिल किताब लिखी गई है। दादा को देखे सारे फदाइल कुर्बान हो रहे हैं दादा पर, बाप को देखे सारी दुनिया के फदाइल कुर्बान होने के लिए तैयार है, माँ को देखे सारी फजीलतों की झुरमट में उम्र बनीन है, सारी फजीलतों के खिलाफ उम्र बनीन है। इसी तरह से बेटों को देखे, यानी नाना के पास कुछ कमाल पाया जाता है वो कयामत तक याद किया जाएगा। अब मैं अपने बच्चों के लिए भी मैं ऐसा करता हूँ, माशाल्लाह आप हज़रात तो सुनते रहते हैं, इसलिए कि आज यौम अब्बास है, अब्बास अलमदार का दिन है, तो इनके फदाइल के साथ साथ कुछ मालूमात भी हमारे जहन में हो, ताकि हम कभी जिक्र करें तो फौरन के हाँ साहब इनके नाना का नाम ये है, दादा का नाम ये है, दादी का नाम ये है, नानी का नाम ये है, सौजा का नाम ये है, बेटे का नाम ये है, भाई का नाम ये है, दफीना यहाँ पर हुआ है, ये कारकर्दगी है और 34 साल में ये काम किया है। इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, इतना बड़ा शजरे तैयबा है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है। तो सबसे पहले आपके नाना का नाम क्या है, तारीख से पूछें, हिदाम बिन खालिद। नाना का नाम है हिदाम बिन खालिद और नानी का नाम क्या है, जनाबे लैला बिन्ते शहीद, ये नानी का नाम है। सौजा का नाम क्या है, लुबाबा खातून, माशाअल्लाह अज़हान आलिया में है। उसके बाद दादा का नाम क्या है, जनाबे अबू तालिब, माशाअल्लाह कौन नहीं आता है। दादी का नाम क्या है, फातिमा बिन्ते असद। माँ का नाम क्या है, फातिमा कलाबिया उम्मुल बनीन। भाई का नाम क्या है, अब्दुल्ला नाम है, जाफर नाम है और उस्मान नाम है। बेटों का क्या नाम है, मोहम्मद नाम है, फजल नाम है, कासिम नाम है, अब्दुल्ला नाम है। और सबके वही बरकत, सबके वही फदाइल है। बल्कि यहाँ तक रिवायत में मिलता है कि नाना के फदाइल में ये जुमला लिखा हुआ है कि अब्बास अलमदार की विलादत से पहले, अब्बास अलमदार की अभी विलादत नहीं हुई है, ख्वाब में देखा कि मेरे आंगन में एक सितारा टूट करके आ गया और जैसे ही सितारा आया, सितारे के पीछे पीछे रसूलुल्लाह भी तशरीफ ला रहे हैं, आंगन में रसूलुल्लाह भी तशरीफ लाए हैं और सितारा आना चाह रहा अपने नाना की तरफ, रिसालत माँ अपने दामन में लेना चाहते हैं, जाके हिदाब में उठा लिया। उसके बाद क्या किया, यकीनन आपने हाथ फैला दिया है, ऐसे ही हाथ फैलाया जैसे खाने काबा में अली के सामने हाथ फैलाया था। अल्लाह पर इसलिए कि अली को ऐसे ही आगोश में लिया है, हाथ फैलाया है अली के सामने, जिसको कहा जाए हाथ फैलाया जाता। लिहाजा बहरा की अलग बहस है कि रिसालत माँ ऐसे ही हाथ फैलाए हुए हैं अली के फर्जंद के लिए, अली के बेटे के लिए। जनाब हिदाब ने कहा ठीक है, आप रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, ये तोहफा आपको दिया जाएगा, ये हदिया आपको दिया जाएगा, लेकिन आप एक वादा ले लें और वादा लेने के बाद ये हदिया लेकर के जाएं। रिसालत माँ सर झुकाए हुए हैं, अब्बास अलमदार के नाना से कह रहे हैं कि जो शर्त हो वो बता दो, इतना जो ऐसा चांद जैसा बच्चा है इसको हम लेकर के जाएंगे। कब्र में हाशिम है, सितारा नाज़िल हुआ है। बहरहाल जैसे रिसालत माँ अपनी आगोश में ले रहे हैं, जनाब हिदाब ने फरमाया कि आप वादा कीजिए कि अब्बास अलमदार के नाम से बाबुल हवाइज
जैसे ही बाबुल हवाइज आप कहेंगे तो आपके जहन में आएगा अब्बास अलमदार। जैसे ही बाबुल हवाइज कहेंगे, बाबुल मुराद कहेंगे, फौरन जहन में आएगा अब्बास अलमदार। इतना ज्यादा पूरी दुनिया की सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के मुरादों को अता कर रहे हैं कि आज नाम नहीं लिया जाता। बाबुल मुराद, बाबुल हवाइज, बाबुल हुसैन, यही आपका नाम है। और उसके अलावा फदाइल बनाते में भी इसलिए कि देखे यकीनन तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए, ये मुहावरा भी है। इसलिए कि जब मौलाए कायनात की जुल्फ़िकार नाज़िल हुई है और एक फरिश्ते ने कसीदा पढ़ते हुए तोहफा ये दिया है, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली। अगर उससे सवाल किया जाए कि जिब्राइल अमीन आपको जानते हैं कि अली कहाँ पर हैं, पूरे मैदान में घूम घूम के लापता क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि आइंदा से जवाब दे अली तो लापता है, बकिया सब लापता है, सब भाग चुके हैं मैदान से, अली का कसीदा है ये, अली का तो एक सलवात भेज दिया। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये जुल्फ़िकार जब नाज़िल हुई, जुल्फ़िकार हैदरी, इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ हुई। बहरहाल इंशाअल्लाह अभी फुर्सत नहीं, वरना ये सब ऐसे बाब हैं, ऐसे फदाइल के मुस्तकिल तौर पर बड़ी देर तक पढ़ा जाता है कि कैसे जो है नाज़िल हुई और क्या ताकत थी, क्या कुव्वत थी। जुल्फ़िकार हैदरी एक साथ बड़े लालच में आ गए, चूँकि ज़ाहिरी तौर पर उनके पास ओहदा भी था, मनसब भी था, खिलाफत को भी गस्ब कर रखा था। सलवात भी लिहाजा उन्होंने जब जुल्फ़िकार हैदरी की तारीफ सुनी और देखा कि किस तरह से ये जुल्फ़िकार काट रही है और काफिरों और मुशरिकों को एकदम काले कर रही है, कला कर दे रही, काट दे रही है, तो उन्होंने एक जगह पर जहां तलवार बहुत अच्छी अच्छी बनाई जाती है लेकर लिखा, खत लिखा। और खत लिखने के बाद कहा कि देखो जुल्फ़िकार हैदरी का नक्शा तुम्हारे सामने है, जो अली की जुल्फ़िकार है, सब इसको जानते हैं। इतनी ज्यादा मशहूर थी कि छठे इमाम से सवाल किया गया कि सारी तलवारों को तो हुसाम और तलवार कहा जाता है, अली की जुल्फ़िकार को जुल्फ़िकार के माने है दो तरफ दो रोया होकर के निकलना, लेकिन इसका तर्जुमा ये तो लोगी तर्जुमा हुआ कि जिस तलवार में दो शाखें निकली हो उसको जुल्फ़िकार कहा जाए। लेकिन छठे इमाम फरमाते हैं कि जुल्फ़िकार का मतलब है कि फकीर कर देना, यानी दुनिया से फकीर बना देती है और जहन्नुम का ईंधन बना देती है। सलवार भेजिए आप से बनाए जो दुनिया से फकीर बना दे जब उसके सामने आ जाए। लिहाजा उसने खत लिखा कि ऐसे ही होना चाहिए, दस्ता ऐसा हो और तलवार ऐसी हो और उसमें दो शाखें निकली हो। और वह चूंकि अली की तलवार बहुत भारी भरकम थी, कोई दूसरा नहीं उठा पाता था मौलाना मुत्तकियान के अलावा, जनाब जिब्राइल के लिए मिलता है या मौलाना मुत्तकियान जिसको इजाजत दे दे, सब तलवार नहीं उठा सकते थे। लिहाजा उसने कहा कि तलवार बहुत भारी भरकम हो और कब ला के दी जाए जब मिंबर पर हो, सारा मजमा रहे, ताकि मैं भी दिखाऊं मेरी ताकत क्या है, मैं भी जुल्फ़िकार की तरह तलवार उठा सकता हूँ। बहरहाल जैसे लेकर लिखा, जो कि बादशाह का हुक्म है, खलीफा साहब का हुक्म है, लिहाजा उसने इतनी भारी भरकम बना दी कि 4 आदमी उसको जनाजे की तरह उठा करके लेके आए। एक आदमी से नहीं उठे, 4 आदमी लाए और मिंबर के नीचे रख दिया। इन्होंने जल्दी से आस्तीन चढ़ाई और दिखाने के लिए नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद दस्ते पर हाथ रखा, देखा तलवार जो है उठी नहीं गई है। फिर बहुत ज्यादा नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उसको पास लेकर लिखते हैं कि ये तुमने कैसी तलवार भेजी है कि ये तो मुझसे उड़ भी नहीं गई है। उसने नीचे लिखा तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। तलवार भाषा नहीं जो मिसरा है, तलवार काटती है मगर तलवार भेजना यही से इशारा है। मुहम्मदा सैफुल मुहम्मद हिंदुस्तान से मिल करके गई थी, जो यहाँ बहुत माहिर थे तलवार बनाने वाले। लिहाजा ये जो यहाँ पर फदाइल का गोशा अब्बास अलमदार के लिए इशारा है, लिहाजा मैंने इसको छेड़ा कि बहुत भारी भरकम अजीब तलवार कि जिसको दुनिया देख करके हैरत में पड़ जाती थी। अब्बास अलमदार की उम्र मुबारक जब 7 साल की हुई तो आसमान से फिर एक मरतबा तलवार आई। अल्लाह अब्बास अलमदार का दर्जा क्या है? कूफे में मौलाना मुत्तकियान खुतबा दे रहे हैं, मजमा भरा हुआ है और दाहिनी तरफ मालिक अस्तर कमांडर इन चीफ बैठे हुए, सामने अब्बास अलमदार 7 साल की उम्र में बैठे हुए। कूफे की मस्जिद का मजमा छलक रहा है। इतने में देखने वालों ने देखा एक आरामी है जिसको कोई पहचानता नहीं, बहुत बड़ी तलवार लेकर के आया है और मौलाना मुत्तकियान
ابراہیم سے دوستانہ تھا. مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم عباس علمدار کے دوست تھے, ساتھی تھے, اور جو ہے فن حرب و ضرب میں دونوں ماہر تھے. جو عرب میں 11 طریقے سے تلوار چلانے کے ابراہیم کو بھی بتایا تھا مولا نے, عباس علمدار کو بھی بتایا تھا. بہرحال مالک بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ تلوار دینے والا تو دے کے چلا گیا, اور تھا کون؟ حالانکہ علی نے کسی اور کو نہیں بتایا. مالک کو قریب بلایا, کہا کہ مالک غور سے تم دیکھ رہے کون ہے؟ کوئی اور نہیں, جبرائیل تھے جو میرے بیٹے عباس کے لیے تلوار لے کر کے آئے تھے. یہ تلوار خان جگہ پر تلوار میری آنکھ جبرائیل تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے میری ذوالفقار نازل ہوئی ہے, ایسے ہی عباس علمدار کے لیے خاص تلوار آئی ہے آسمان سے. اور یقیناً بہت کمال دکھایا ہے اس تلوار نے, بہت زیادہ کمال دکھایا. اس لیے کہ جنگ صفین میں ایک دفعہ ایسا بھی وقت آ گیا, چونکہ یہی جنگ بہت دن تک چلی ہے اور کافی لوگ زخمی ہو جاتے تھے دونوں طرف, پھر آرام کرتے تھے, پھر صحیح ہو جاتے تھے, پھر لڑائی ہوتی تھی, پھر 2-4 دن آرام کرتے تھے, پھر زخمی ہو جاتے تھے. اس طرح سے لڑائی ہوتی رہتی تھی اور آرام کرتے رہتے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ مالک اشتر چونکہ کمانڈر ان چیف, یہی جنگ صفین ایسی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شجاع مولا کے خیمے میں موجود, مولا علی موجود ہیں, امام حسن موجود ہیں, امام حسین موجود ہیں, محمد حنفیہ موجود ہیں, مالک اشتر کیا سن رہے ہیں, مالک اشتر موجود ہیں, اور وہیں پر 11 سال کے عباس علمدار موجود ہیں, عباس علمدار موجود ہیں. اور اتنے لوگوں, مثلا اگر کہیں پر 10-12 آیت اللہ بیٹھے ہوں اور کوئی ایک ایسا آیت اللہ یا عالم دین آ جائے کہ سب کھڑے ہو جائے, تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اتنے آیت اللہ کے بیچ میں اگر کوئی اپنے جلال کو دیکھا ہے تو یقیناً بہت بڑا فقیہ ہے, بہت بڑا مجتہد ہے. جہاں پر امام حسن موجود ہو, حسین موجود ہو, مالک موجود ہو, محمد حنفیہ موجود ہو, وہاں اپنے آپ کو قمر ہاشم بتانا یہ عباس کا کمال ہے. چراغوں کے درمیان چمکنا, سورج کے درمیان چمکنا, چاند کے درمیان چمکنا, جہاں 14 سورج ہو, 14 چاند ہو, وہاں قمر بنی ہاشم بننا, یہ عباس کا کمال ہے. اللہ اکبر. لہذا جیسے ہی سب زخمی ہو گئے, رات میں خیریت لیا مولا نے, مالک کو بلایا, کہا مالک آؤ, تمہارا چہرہ لٹکا ہوا ہے, بہت مایوس ہو. آخر وجہ کیا کہا مولا, کل کے دن جنگ نہیں ہوگی, اس لیے کہ جو میرے خیمے میں میرے لشکر کے نیچے سب کے سب زخمی ہو چکے ہیں, سب کے سب مجروح ہیں, اور کل تاب نہیں, ان کا علاج کیا جائے گا. مولا سنتے رہے, آخر میں کہا نہیں مالک کل جنگ ہوگی, کل حملہ کیا جائے گا جنگ صفین میں. مالک سوچ رہے ہیں کہ اور کون ہے, اس لیے کہ تقریباً سب مجبور ہو چکے, ہم کو معلوم ہے کمانڈر ان چیف بنایا گیا ہے, اور مالک کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. میرا کبھی لوگ فضائل میں پڑھتے پڑھتے کچھ جملے کہہ جاتے, لیکن یاد رکھے اس میں بھی جو باریکی ہے میں پیش کر دوں. اس لیے ایک دفعہ مالک کو احساس ہو گیا تھا, جس کو لیلۃ الحری کہا جاتا ہے, بلی کی طرح سے جھپٹ رہے تھے, رات میں حملہ کر رہے تھے, بار بار حملہ ہو رہا تھا. اس میں مالک بہت آگے پہنچ چکے تھے. لہٰذا جب مالک کو واپس بلایا ہے, اتنا زیادہ مالک نے جنگ کیا تھا کہ جو دستہ آپ نے پکڑ رکھا تھا اس پر بار بار خون آنے کی وجہ سے جم گیا تھا. آپ کی آستین تلوار کے اوپر جم گئی تھی. رات بھر جنگ کر رہے ہیں, صبح جب بلائے گئے مالک, تلوار نہیں نکل رہی ہے. مولا نے گرم پانی سے پہلے خون صاف کیا اور اپنے ہاتھ سے تلوار کو نکالا مالک کے ہاتھ سے. بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ علی کر رہے ہیں ایسا. لہٰذا بات بات پہ کہہ دیا کہ اے علی, آج تو میں نے تم آپ سے زیادہ کاٹا ہے. مولا متقیہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے مالک یاد رکھو تم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور میں نسلوں کو پہچان کر کے مار رہا تھا. 70 نسلوں کو اس کے بعد عجیب جملہ ہے, یہ جملہ تو بہت مشہور ہے, یہ جملہ تو بہت مشہور ہے. پھر عجیب جملہ مولا نے فرمایا کہ مالک یہ تم نے کہہ دیا کہ آج میں تو آگے بڑھ گیا تھا, جسے یاد رکھو ایک مرتبہ آستین چڑھاتے ہیں, آستین چڑھانے کے بعد ہاتھ پھیلایا, مالک پھر سے بیان کرو, کوئی بھی معموم امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے. پھر سے بیان کرو, میرے پھر کیا سن رہے ہیں آپ, اللہ بہت ہی اندر کی باتیں جب کم بیان کی جاتی ہیں. لہذا ایسے موقع پر جہاں مالک کی ایسی تلوار چل رہی ہو, امام حسن کی ایسی تلوار چل رہی ہو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسن نے کیسے قبضہ کیا تھا فرات پر, امام حسین
की तलवार, मोहम्मद हनफिया की तलवार। अल्लाह अकबर। मोहम्मद हनफिया की ताकत के बारे में ये है कि जवानी के आलम में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ज़िरा पहनने के बाद अगर ज़िरा बड़ी हो जाए तो उसको जो है आप बढ़ई के पास नहीं ले जाते थे, अपने पंजे से नोच करके कम कर दिया करते थे। मोहम्मद हनफिया के सामने अब्बास का जलाल, इमाम हसन इमाम है, उनके सामने अब्बास का जलाल, लिहाजा मौला मुस्कुरा रहे। मालिक कहते जा रहे, हाँ मालिक और आगे कहो और आगे कहो। आखिर में कहते थे कल जंग होगी, कल जंग होगी। जब सुबह नमदार हुई, मालिक भी ताज्जुब में है कि रात मैंने सारी दास्तान सुना दिया और मेरा मौला यही कहता रहा कि जंग होगी। एक मतलब 11 साल का अब्बास, उसको बुलाया। तारीख कहती है जब अब्बास आ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे जमाने का हमजा चल के आ रहा हो, जमाने का जाफर चल के आ रहा हो। जाफर की तरह आ रहे थे, हमजा की तरह आ रहे थे, अली की तरह छूटते हुए आ रहे थे। और इनकी आदत ये थी कि हमेशा निकाब पहनाया जाता था। शायद दिया था कि आखिर अहले बैत रसूल या करबला वालों के चेहरे पर निकाब क्यों रहता था। आज फिर भी बस एक बात की तरफ इशारा कर दिया जाए जो बातें कब पढ़ी जाती हैं। एक तो ये इल्लत कि हमेशा जो भी आज ख्वाब में देखता है ये कहता है कि निकाब पोश आए थे। जनाब कासिम को देखा, कहा पहचान नहीं पाए, लेकिन कब से पता चला लिबास है कि कासिम थे, हालांकि निकाब था। अली अकबर साहब में आए, निकाब था। अब्बास लमदार साहब में आए, निकाब था। तो क्या वजह है कि निकाब पहना करके भेजा जाता था। और दूसरी बात ये कि मौला मुत्तकियान के लिए कि शहादत तक अली मुस्कुराते रहे, तो वजह क्या है कि अली हर वक्त हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। हालांकि फिदक ले ली गई, अली हंसते रहे। खिलाफत गस्ब कर लिया, अली हंसते रहे। अली के माल पर हमला हुआ, अली हंसते रहे। अली के औलाद पर हमला हुआ, अली मुस्कुराते रहे। ये बात समझ में ना आती कि अली हमेशा क्यों मुस्कुराते रहते थे। इमाम से पूछा गया कि मौला ये बताइए कि आपके छत पर इतनी मुसीबतें पड़ती थी लेकिन हर वक्त मुस्कुराते क्यों रहते थे। बड़ी अंदर की बात बताई इमाम ने। कहा इसलिए अली मुस्कुराते थे कि अल्लाह ताला ने इतनी हैबत दे रखी थी कि कोई भी मसला पूछने आए और अली गौर से देखने की हिम्मत नहीं थी कि वो कलाम कर जाए। लिहाजा अली मुस्कुरा के कहते थे आए हो तो बैठ जाओ, अली से मसला पूछ लो। मुस्कुराहट की वजह से दिल नरम हो जाता था, अली के चेहरे की हैबत कम हो जाती। तलवार ले जा इतनी ज्यादा हैबत थी, इतना चला था, किसी को मजाल नहीं थी कि अली से कलाम कर ले। ज्यादा मुस्कुराते रहते, हंसते रहे, जिसको अरबी में कहा जाए तबस्सुम, मुतबस्सिम होते। चूंकि यहाँ पर लफ्ज़ कहकहा नहीं आया, कहकहा आवाम के लिए है, मासूमियत के लिए तबस्सुम है, जो कुरान ने भी जो है पेश किया है और हदीस में। लिहाजा मौला मुत्तकियान हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और अब्बास लमदार के लिए है कि इतने ज्यादा खूबसूरत थे, इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि आपको बाकायदा मौला मुत्तकियान निकाब पहना के देते थे। तैयार करने के बाद चेहरे पर खुद निकाब डाल देते थे, इसलिए कि आपकी खूबसूरती को सामने वाला बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। यहाँ पर फुर्सत नहीं है, वरना तो कुरान से मिसाल देता कि आखिर जो है ऐसे वाकयात कैसे हैं कि जनाब यूसुफ की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इमाम रज़ा की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाए, नवा इमाम की खूबसूरती को तारीख ने पेश किया। क्या क्या हादिसा हुए, तलवार भेजा कितना ज्यादा अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया था अब्बास लमदार को, जनाब अली अकबर को, जनाब कासिम को। जनाब कासिम जब बाहर निकले तो दुश्मन ने कहा कल कमर, ये तो चमकता हुआ चांद है जो हमारे दरमियान है। दुश्मन की निगाह में ऐसे चांद की तरह है तो घर वालों की निगाह में कैसे हो। अब्बास लमदार कमरे बने हासिल, लिहाजा एकदम शेर की तरह मालूम है कि क्या करना है। लिहाजा अली ने इशारा किया, अब्बास लमदार आए। और यही से बहरहाल एक बहुत बड़े आयतुल्लाह ने भी अपनी किताब में इसको दर्ज किया है कि चाहता मासूमी का दर्जा तो अपनी जगह पर है। अब्बास लमदार चाहता मासूम की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन महफूज अनिल खता है। और मोटी किताब लिखा है कि उसमें जो सारी बहस को करते हुए, लेकिन आज यहाँ पर साबित हो जाएगा यकीनन सानिया हैदर क्यों कहा जाता है, जो इस्मत अली की है, ऐसे ही अब्बास में झलकी है, जो हसन की है वही अब्बास में है। आप कहेंगे क्या दलील है, इसलिए कि मौला के लिए ये दलील है कि बाकायदा जैसे ही रिसालत माप दुनिया से जाते दावा करने वाले और निकले कि रसूल का अमामा चाहिए, रसूल की अबा कबा चाहिए। एक बार तो मौला ने मुस्कुरा के कहा इब्ने अब्बास अगर अमामा पहन सको तो पहन लो, जैसे
चलने लगे, बहुत ज्यादा घबराने लगे। तो लिहाजा मौला ने कहा ठीक है, आज मिसले अली जाएगा, आज मिसले हैदर जाएगा, लिहाजा वही कद्दो कामत है जो अली का कद्दो का। 11 साल की उम्र है पास की, मजमा बता रहा है, इसे तारीख में लिखा हुआ है कि अगर थोड़ा सा छोटे होते तो दुनिया समझ जाती कौन आ रहा है। ऐसा सजाया, ऐसा अब्बास अलमदार को सजाया कि सजाने के बाद जब भेजा है और अब्बास ने हमला किया तो हर तरफ से शामियों की आवाज यही आ रही थी, कद कुतिला अली, ये तो अली कत्ल कर रहे हैं, ये तो अली हमला कर रहे हैं, ये तो अली की तलवार है, ये तो अली के मुंतजार है। मौला अली आप पे हाथ जोड़ करके एक जुमला अदा करूंगा, यकीनन गुस्ताखी नहीं है और अबू फजल अब्बास अलमदार की फजीलत है कि आपको भी, आपके ऊपर भी धोखा हुआ, अब्बास पर भी धोखा हुआ, लेकिन मौला माफ कीजिएगा, आपको रात भर दुनिया नबी समझती रही, आपके बेटे को दिन भर अली समझती रही। यहाँ नबूवत का धोखा, यहाँ इमामत का धोखा, लेकिन वहाँ रात में हुआ था, यहाँ दिन में हुआ। अजीब वाली मजलिस की अजीब मोहब्बत है, यकीनन मैं हट नहीं सक रहा हूँ कि सिर्फ फदाइल अब्बास अलमदार बहुत मनासिब हैं, बहुत फदाइल हैं, फदाइल का समंदर मौला, यकीनन आप पर लाखों सलाम, आपकी फजीलत है, लेकिन आपको रात भर जो नबूवत का दर्जा दिया गया, नबी समझते रहे, रात का वक्त था। और बल्कि इशारा कर दो, हमारे नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा और मुस्कुराहट का मौका मिल जाए कि अली को क्यों नहीं पहचान पा रहे थे, इसलिए कि अली पर 3 पर्दा पड़ा हुआ था, 3 दुश्मनों का पर्दा पड़ा हुआ था। जब हटा तो अली पहचानेंगे, आप कहेंगे 3 दुश्मन कैसे? एक तो ये कि चादर का पर्दा था, पूरी चादर ओढ़े हुए थे, दूसरे रात की तारीकी का पर्दा था, तीसरे दूरी का पर्दा था, दूर खड़े हुए थे 40 लोग जो तलवार लेकर के आए थे वो दूर खड़े हुए थे, रात की तारीकी थी और ऊपर से चादर ओढ़े हुए थे। जब तीनों पर्दों को हटाया गया तो अली पहचाने गए। अल्लाह अकबर, जब तीनों दुश्मनों को हटाया गया। लेकिन यहाँ पर एक जुमला और अदा कर दिया जाए, इसलिए कि 40 जो वहाँ पर यार बहुत पते की बात है, मिंबर पर अजीब फिक्र आती है और जब आ रही थी मैं कंजूसी नहीं होगा, कोई सलवार दे देना यहाँ पर बुख नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये बद्दू अरब, ये जाहिल अरब इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, इतना कीमती जुमला आया कैसे इनके दिल में? इतनी रात में आप बेदार हैं और यकीनन बेदार है तो ले जाएंगे, मैं इशारे में बात करूंगा कि ये बद्दू अरब, ये जाहिल अरब, ये 47 साल 48 साल 52 साल तक काफिर रहने वाले, मुशरिक रहने वाले, मुल्हिद रहने वाले और न जाने क्या क्या खबासतें और पलीदगियां इनमें थी, ये इतना कीमती जुमला इनके जहन में आया कैसे कदीर में कि मौला अली के सामने आकर रसूलुल्लाह के सामने कह रहे हैं, बखील बखील लगा या बना अली तालिब, मुबारक हो अबू तालिब के बेटे फर्जंद तुमको मुबारक हो। ये बखील जो है आखिर ये कहाँ से याद करें, याद रखिएगा, इतने काबिल नहीं थे, इतने फादिल नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब आप अपना जहन ले जाइए, शबे हिजरत अली बड़े आराम से सो रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक मलक को सिराने खड़ा किया, दूसरे मलक को पार्टी खड़ा किया, जिब्राइल सामने खड़े हुए हैं और मीकाईल पार्टी खड़े हुए हैं और दोनों आपस में कह रहे बखील बखील लगा या बना अली तालिब, बखील बखील लगा या बना अली तालिब। सुबह तक ये जुमला कहते रहे और ये 40 चोर जो खड़े हुए थे तलवारें लेकर, कान लगा के यहाँ पर सुना कदीम जाके दोहरा दिया, बखील बखील लगा, क्या सुना रहा, बखील बखील सलवार पे इतना कीमती जुमला है, बखील बखील लगाए बना अली तालिब। और आगे तारीख ने और कहा कि लक़द अस्बहता, ऐ अली आज आपने अजीब सुबह की है कि आप सारे मोमिनीन के भी मौला हो गए और मोमिनात के भी मौला हो गए और हमारे भी हो गए। ना अपने आप को मोमिन में रखा, ना मोमिनात में रखा, तीसरा कौन होता है आपको मालूम है, सलवात ले जा और हमारे भी हो गए। खुद ही अपने आप को कोई मोमिन में न रखे तो हम क्यों उसको मोमिन कहें? ना मोमिनात में रखा, ना मोमिन में रखा, तीसरा जुमला कि मेरे भी हो गए। तो पता चला कि मौलाए मुत्तकियान के देखे ताकि ये अब्बास अलमदार का शबाब है, अली की उस वक्त उम्र क्या थी, इसलिए कि 40 अफराद जो खड़े थे बाहर तलवार लेकर के, किसी की मजाल नहीं थी कि अंदर चला जाए, सिर्फ एक अबू जहल की हिम्मत पड़ी थी कि जैसे ही उजाला होने लगा वो फौरन दीवार को पार करके अंदर आया और
तारीख कहती है कि चादर तो खींची उसने एक बारिश, जिससे अली का चेहरा नजर आ गया, पूरी चादर नहीं हटा पाया, लेकिन उछल करके बहुत दूर जाके खड़ा हो गया। मैं कहूँगा अबू जहल से, आखिर इतना डर क्यों रहा है? हो सकता है अबू जहल जवाब दे, तुम्हें खबर नहीं है अली के 3 दिन का तमाचा जब ऐसा ही तो 19 साल का अली है, ये तो आज इत्तेफाक के शुजात में पहले चल रही है कि क्या शुजात है अली की, क्या शुजात है अब्बास की। और शुजात के सिलसिले में तो हदीस में यहाँ तक आया है कि इन्नल्लाह युहिब्बु शुजा वलो बिक़तिल हय्या, अल्लाह ताला शुजात को इतना पसंद करता है, चाहे एक सांप मारने के लिए कोई एक सांप भी मार दे तो अल्लाह ताला बहुत पसंद है। सलवार भेजे आप अब्बास नमदार की क्या शुजात, क्या ताकत है, 11 साल की उम्र है, अपना अमामा पहना दिया, अपनी अपने हूबहू अली बना दिया, सानिया हैदर कहा जाता है, सानिया अली कहा जाता है। जंग करने के लिए चले और किस तरह से जंग किया है, कैसे फुरात पर कब्जा, ये बाद में फुरात पर कब्जा किया है करबला में, अब्बास नमदार ने पहले कब्जा किया है और कब्जा करके इमाम हसन के हवाले किया, चूंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन को भेजा गया था लेकिन ये कि देखते रहना मेरा बेटा हमला कैसे करता है। फुरात पर कब्जा करने के बाद इमाम हसन के सामने, चूंकि अब्बास नमदार शागिर्द थे इमाम हसन की, सलवात भेजे आप मौका नहीं मिला इमाम हसन की शुजात को कम बयान किया जाता है, यही से अंदाजा लगाइए कितने बड़े शहीद थे, इमाम थे, मासूम थे। 11 तरीके होते हैं तलवार चलाने के, 11वां तरीका इमाम हसन ने सिखाया था अब्बास नमदार, लिहाजा भेजा गया था कि मेरा बेटा लड़ेगा तुम देखना, ऐ हसन देखते रहना, ऐ हुसैन देखते रहना, ऐ मोहम्मद हनफिया देखते रहना, ऐ मालिक असद देखते रहना, इब्राहिम भी मौजूद थे, बचपना था कि देखते रहना मेरा अब्बास हमला करेगा। जैसे ही फरात पर कब्जा किया फौरन हाथ जोड़ लिया कि ऐ भाईजान, इमाम हसन की तरफ इशारा किया कि आप बताइए क्या करें। कहा यकीनन कब्जा तो कर लिया है लेकिन पानी पीने की इजाजत सबको है। फौरन पहला जुमला इमाम हसन का, यही तो करामत है। मेरा लिए अलग बहस है कि अहले बैत की करामत क्या है, हमला करते जा रहे हैं और यहाँ तक कि जब बहुत ज्यादा शामियों को काट के रख दिया तो एक दफा ये होता है इब्न शुवैशा बहुत बड़ा बहादुर था, उसके सामने आए शामी के कुछ अफराद कि ऐसे ऐसे जंग हो रही है, उसके सामने कोई टिक नहीं रहा है, तू क्यों नहीं जाता? पकड़ के कहता है कि मुझको तो रसीदा किया गया है बहुत देर के लिए, अभी जल्दी मेरे बेटे हैं 7, सातों बेटे में से एक को भेजा। बहरहाल अब्बास नमदार ने ऐसे मार दिया जैसे आमतौर पर जो है जंग की जाती, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, सातों बेटे जब मार दिए गए तो एक मर्तबा बहुत छल्ला करके आया और ये सोचा कि मौका भी नहीं दूंगा अब्बास को। अब्बास नमदार ने जुल्फ़िकार हैदरी की तरह ऐसे हरकत दिया कि पूरे शामी देख रहे हैं कि खड़ा क्यों है, ये मरा क्यों नहीं। अब्बास ने मुस्कुरा के कहा थोड़ा हरकत दे करके बताओ, मैंने ऐसे मारा है जैसे खैबर में मेरे बाबा अली ने मारा कि जब मारा हमने हरकत किया तो एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा ऐसे ही हरकत तो कर सलवार भेज दिया। यहाँ पर भी अब्बास नमदार जो फरात तक पहुंचे हैं और वहां पर अपने अलम को गाड़ा जो खास तरीके से अलम मिला हुआ था, फिर मौला अली से इल्तिजा है, हाथ जोड़ कर कहते कि मौला यकीनन अलम आपने भी गाड़ा था, अलम अब्बास ने भी गाड़ा है, आपने पत्थर पर अलम गाड़ा है, अब्बास ने पानी पर अलम गाड़ा है, बाप बेटे ने दोनों जगह अलम गाड़ के बता दिया कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि अगर खुशको तन का कब्जा है तो या बाप का कब्जा है या बेटे का कब्जा है। बाप खुशकी पर अलम गाड़ रहा है, बेटा जो है नग्न सलवार भेजे हाँ बता निकाब पहनाया रहते थे, नजर न लगे। मौला तकिया ने सब कुछ तैयारी करने के बाद निकाब पहनाया और निकाब इसलिए पहनाए के बाद में इसके लिए इल्लत भी बयान किया कि इतने ज्यादा खूबसूरत थे ये, अल्लाह ताला ने बनाया था कि नजर न लग जाए, लिहाजा बाकायदा दुआ पढ़ते थे और दुआ पढ़ने के बाद दम करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकत थी अब्बास की, ऐसे जुल्फ़िकार को तलवार को लहराते थे कि शामी बार बार कह रहे थे ये तो अली लड़ रहे हैं, ये तो अली लड़ रहे हैं। मैमना को जो मैमना पर हमला किया इसलिए का अब्बास नमदार के लिए है कि एक वक्त में आज तक पूरी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं पाई जाती है कि कोई एक ऐसा कमांडर हो जो एक ही वक्त में आसमानी फौज को भी कब्जा
कमांडर इन चीफ है कि एक ही वक्त में 3 फौज नहीं बल्कि सरदार जैश पर भी कब्जा है, मैमना पर भी कब्जा है, मैसरा पर भी कब्जा है, कम के लश्कर में भी कब्जा है, ततिम्मा लश्कर पर भी कब्जा है। अल्लाह अकबर, ऐसी ताकत दे रखी है, ऐसी कुव्वत दे रखी है। और यकीन जानिए कि कमांडर इन चीफ का जो काम होता है और उसके अलावा जो वहां पर मालिक होता है सारे फौज का, जिसको सरदार कहा जाए, सरदार का काम अलग है, कमांडर का काम अलग है। आप कहेंगे सरदार का काम क्या है? इसलिए मौला हुसैन सरदार है और अब्बास लमदार कमांडर इन चीफ है। अल्लाह ताला ने क्या अक्ल दिया, क्या समझ दिया, कैसी कमांडरी है कि कयामत तक अब ऐसा कमांडर नजर नहीं आया। बाकायदा तारीख में जर्मन की फौज जब गुजरने लगी करबला से, पहले तो प्यादा सफर होता था, जब लड़ाई खत्म हुई ये हुआ कि यहाँ मैदान से गुजरा जाए, जैसे ही करबला की सरहद नजर आई, एक मरतबा ये जो जर्मन का जो कमांडर था वो अपने फौजियों की तरफ निगाह उठा करके देखता, कहता कि अपनी अपनी बंदूकों को नीचे कर लो, अपनी अपनी बंदूकों को झुका लो। सारे लोग जो कमांडर का हुक्म है ज्यादा खामोश रहे, लेकिन 3-4 किलोमीटर जब पार कर लिया और ये हुआ कि हुजूर अब इजाजत है कि बंदूक सीधी कर लें, कहा कि हाँ सीधी कर लो। कहा बताइए क्यों आपने 3 किलोमीटर तक बंदूक को झुका दिया? कहा दुनिया के जितने कमांडर हैं सब छोटे हैं, असल कमांडर करबला के मैदान में जिसका नाम अब्बास है वो सोया हुआ है, उसके सामने किसी की मजाल नहीं है जो बंदूक इस तरह से लेकर के चला जाए। ये गैर सरदार है, लिहाजा अपनी सरदारी को हुसैन इस तरह से पेश किया कि कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, कहाँ लड़ना है, नहीं लड़ना है, नहीं हमला करना है, खैमा हटा देना है, उनको पानी पिला, ये सरदार का काम है। लेकिन कमांडर का काम ये है कि सुबह से लेके अस्र तक 72 को कैसे लड़ाए, कि 30,000 की फौज है, लेकिन अब्बास लमदार ने जो तरतीब बनाई है, अल्लाह अकबर, ये जो मशवरा दिया था कि खंदक खोद दी जाए, क्योंकि बहुत मुख्तसर फौज है, लिहाजा 3 तरफ खंदक खोद दिया है, एक तरफ से जंग हो रही है। इशारा ये है कि यजीदी के हर तरफ से हमला करके 1 घंटे में जंग तमाम न कर दे। अब्बास लमदार ने ऐसा तरीका बनाया था कि जिसको भेजते जाएंगे बस जंग वही करता चला जाएगा, कोई हमला नहीं कर सकता। ये अब्बास का दिमाग है, ये अब्बास की कमांडरी है। लिहाजा नमाज सुबह से लेके अस्र तक जो जंग हुई है ये अब्बास की तरतीब थी कि आप जो है अपने सामने वाले पर भी नजर रखे हुए हैं, जल पर भी है, थल पर भी है, यानी जो वहाँ फरात के अंदर है, फरात के अंदर जो थे उनकी क्या हालत हुई। फिर मैं हवाले दे दूँ इंशाल्लाह। आप यही बॉम्बे से माशाल्लाह ये किताब कई दफा तकसीम भी हुई है और इतनी अच्छी किताब थी कि कई दफा तकसीम हुई, खत्म हुई, फिर से माशाल्लाह छाप हुई, फिर इसको तकसीम किया गया जगह जगह। इस किताब का नाम है उम्मत और अहले बैत। उम्मत और अहले बैत, इसमें पूरे करबला वालों की जंग और किस तरह से इन्होंने मारा है, फिर कैसे शहीद हुए हैं, बाकायदा आदात के साथ पेश किया है। अली अब्बास मर्चेंट कहते हैं अपनी किताब में कि लोग कहते हैं कि अली अकबर ने मारा, कासिम ने मारा, मौला हुसैन ने जंग किया 10,500 को मार करके फिर नाम कर दिया। मैं कहूंगा कि अब्बास ने भी मारा है। फिर उन्होंने क्या दलील दिया? अल्लाह अकबर, आप वक्त में आ जाएंगे, आप जुमला सुन करके कि अब्बास को तलवार तो नहीं मिली थी, नहला लेकर के चले थे, लड़ाई की इजाजत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने निगाहों में वही ताकत दी थी जो मौला अली की निगाह में ताकत थी। इसलिए कि रिवायत में है कि जो अली की निगाह में आ जाए, वो जुल्फ़िकार के सामने आ जाए, ऐसा नर्वस होकर सर झुका देता कि बस अब मुझ में ताकत नहीं, अली की जुल्फ़िकार आए और कत्ल कर दे। सारी ताकत खत्म हो जाती थी जब अली की निगाह से निगाह मिल जाती थी। अब्बास लमदार की निगाह में वही ताकत है। ये कहते हैं कि जब अब्बास चले जा रहे थे, एक मतलब बहुत से फौजी दौड़ते हुए अपने आप को फरात में इस तरह से छिपा लेते हैं कि अब्बास आ रहे हैं, सर उठाए देखा अब्बास आ रहे, फिर डूब गए, फिर सर उठाए देखा अब्बास आ रहे हैं। वो कहते हैं 520 अफराद पानी में डूब के मर गए अब्बास की निगाहों के जरिए से। अब्बास की निगाहों क्या ताकत है, क्या है। बस मैदान इतने ज्यादा फजाइल है। ये तो मैं एक रुख लेके चल रहा हूँ, यकीन जानिए टाइम में घड़ी भी देख रहा हूँ, बार बार और थोड़ी देर में भी हो सकता है कि आलम भी आने वाला टाइम हो रहा है। लिहाजा फजाइल का ऐसा समंदर है कि यकीन जानिए कि अगर मैं पढ़ता रहूँ तो हो सकता है कई घंटे तक सिर्फ अब्बास लमदार के जलाल को बढ़ा जाए। सलवात भेजना क्या जलाल है, क्या जमाल है। बहरहाल ये तो शुजाअत है, उसके अलावा भी अब्बास लमदार के जो इल्मी मकाम है
جو آپ کے علم و فہم پر کافی علماء نے قلم اٹھایا ہے، لکھا اس پر بھی ایک الگ بحث ہے کہ عباس علمدار کی شجاعت کو پیش کیا جاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے، اتنی زیادہ معرفت امام ہوتی ہے علم کے مطابق۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ بہت سے لوگ بڑی جلدی چلان میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، اگر آپ تحقیق کریں تو پتہ چلا علم کم ہے، لیکن جس کے پاس علم بہت ہوتا ہے بہت سوچ سمجھ کے وہ چلان میں آتا ہے، اپنی شجاعت کو صحیح جگہ پر اگر لگائے۔ اس لیے کہ دو جملہ، ایک تحور ہے ایک شجاعت ہے۔ تحور یعنی بے موقع طاقت کا اظہار کرنا، شجاعت میں دیکھنا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں، رسول اللہ راضی ہے کہ نہیں، امام راضی ہے کہ نہیں۔ لہذا عباس علمدار کے پاس شجاعت پائی جاتی ہے، ہمیشہ چشم و ابرو، ہمیشہ نگاہ امام پر کہ میرا مولا کیا کہہ رہا۔ بس آخر بیان میں یقین جانے ورنہ ہمارے اماموں نے جو سلام کیا ہے وہی پیش کیا جائے کہ 12ویں امام نے کیسے سلام کیا، چوتھے امام نے کیسے سلام کیا، پانچویں امام نے کیا جملہ فرمایا، چھٹے امام نے کیا جملہ فرمایا، یہاں تک کہ مولا حسین نے کیا درجہ پیش کیا۔ بے نفس فدا، اے عباس میری جان تم پر قربان ہو جائے۔ آپ دیکھیں مولا کے جملوں میں میرا سلام میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیا درجہ معصومین نے فرمایا ہے، یہ الگ فضا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے کچھ جملہ پیش کیا وہ الگ فضا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے پیش کیا وہ الگ فضا ہے، احادیث اور روایات میں کچھ جملے آئے ہیں وہ الگ فضائل ہیں، زیارتوں میں بہت سے جملے آئے ہیں عباس علمدار کے وہ الگ فضائل ہیں۔ چوتھے امام نے افضل الشہداء کا، سید الشہداء کا درجہ الگ ہے، افضل الشہداء کا درجہ الگ ہے۔ اللہ اکبر، کتنا علم تھا، کتنا کمال تھا۔ بہت سی باتوں میں آپ حذف کرتے ہوئے یقیناً عباس علمدار کے علمی کارنامے جو آپ کا علم تھا یقیناً پیش نہیں کر پائے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی پنجتن کے گھرانے کا ادب، یہ بھی اہل بیت کے گھرانے کا ادب۔ بس میں اشارہ کر دوں کہ عباس علمدار کے پاس اتنا علم تھا لیکن پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کے ذہن میں شاید بات ہو، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کا ادب ہے کہ رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے مولا کے پاس بہت علم تھا لیکن ہمیشہ خاموش رہے جب تک رسول اللہ خطبہ دیتے تھے۔ جب رسول دنیا سے چلے گئے تب علی نے علم کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے مولا علی جب خطبہ دیتے تھے امام حسن خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے، جب امام حسن خطبہ دیتے تھے امام حسین خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے۔ لیکن مولا حسین کے بعد عباس علمدار کو موقع نہیں ملا، ورنہ اسی طرح سے ظاہر کرتے جیسے رسول کے بعد علی نے ظاہر کیا، رسول کے بعد امام حسن نے علم کا اظہار کیا، امام حسن کے بعد امام حسین نے علم کا اظہار کیا، لیکن اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اللہ اکبر ایسا ظاہر فرمایا ہے آپ نے کہ دیکھو جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اتنی زیادہ عصمت پر نظر ہوتی ہے، اتنی زیادہ معصوم پر نظر ہوتی ہے۔ مولا حسین ایک ہی جملہ فرماتے تھے جہاں عباس علمدار کو چلا آتا تھا پڑھ کر کے کان میں اشارہ کرتے تھے بھیا عباس تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس لیے کہ تاریخ کہتی ہے کہ مدینے میں عباس کو جلال آیا تھا، شہزادی زینب نے ساتھ میں بھیجا تھا کہ نہیں ایسے میرا بھائی اکیلے نہیں جائے گا۔ 18 بنی ہاشم تھے، 32 نوجوانوں کو بنی ہاشم کے گھرانے سے لے کر کے عباس علمدار پیچھے پیچھے گئے تھے۔ مولا حسین دربار میں پہنچے ہیں لیکن جیسے ہی آواز بلند ہوئی حسین کی، تاریخ کہتی ہے کہ دروازے کو توڑتے ہوئے جو سب سے پہلے اندر داخل ہوا دارالعمارہ کے دروازے کو پاؤں سے دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ گیا، وہ عباس علمدار کی ذات تھی۔ جیسے ہی اندر پہنچے حسین کو دیکھا لیکن حسین کو دیکھتے ہوئے گستاخ کے غریبان تک ہاتھ پہنچا دیا۔ حسین نے آہستہ سے کہا بھیا عباس تم کربلا کے لیے پر ہاں دے دو، جذبات پر قابو رکھنا، شجاعت پر قابو رکھنا، یہ بھی کمال ہے، یہ عباس علمدار کا کمال ہے۔ ورنہ جس کو اٹھایا تھا اس ملعون کو اگر زمین پر دے مارتے تو زمین میں دھس جاتا، اس کو دفنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عباس کے پاس ایسی طاقت ہے، عباس کے پاس ایسی قوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، معرفت بھی دی ہے۔ اور دوسرا مقام آتا ہے جہاں پھر عباس کو جلال آیا۔ ایک مرتبہ کوفے کے قریب جیسے ہی سنا السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین نے فرمایا ہے میرے بھیا مسلم تم پر بھی سلام ہو۔ عباس نے آستین چڑھا دی کہ مولا کوفہ قریب ہے۔ ایک مرتبہ پھر اشارہ کیا بھیا عباس تم کربلا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ عباس پیچھے ہٹ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے آگے بڑھنے کے بعد حر نے نجام فرض پر ہاتھ ڈالا، عباس کو چلا نہ گیا۔ حسین نے پھر اشارہ کیا لیکن
भैया जो आपका